Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear friends, this is Muhammad Asif, your class teacher for grade H. Respected students, this is Grammar Club book and we are dealing to unit number 2. There are two parts of unit number 2. The first part is gerunds and the second part of unit number 2 is participles. In the previous class, we discussed the term gerunds. I explained you that gerunds are the words which has an ending with ing. Sometimes these ing words they behave as a verb and sometimes they behave as a noun. Now going to the second part of unit number 2 that is called participles, and there we have the theme, there we have the definition or explanation of the word particles. See this? It's written here that the particle is the form of a verb that ends in ing or ed. Means sometimes we are watching that the word has an ending with ing and sometimes it has the ending with ed. Both type of the words would be considered as participles. But there is a condition. It does the work of a verb sometimes when we see that ing or ed word, so it will be showing the position of work as a verb or as an adjective in a sentence. Going to the example of the particle, the participle has this example. See this? I get to see the sunrise walking on the beach. Now, walking is a word. Walking is a word. Walking is a word which has ing, and when a word has ing in the last, so it can be called gerund and as well as participle. Participles that ends in the ing and represent an action going on or incomplete are called present participles. Now, this is another thing, new thing, कि वो ing वाले वर्ड्स कि जो बता रहे हैं किसी काम के होने को, जो बता रहे हैं किसी काम के चलने को, कंटिन्यूएशन को, ठीक है, तो उसके लिए जो ing वाला वर्ड होगा उसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा. Like the sentences I saw Nazia playing in the water. I saw Nazia playing in the water. इसमें आपके पास क्या कहा जा रहा है? Playing in the water मतलब पानी में खेलते हुए. The playing in the water is a word or is a phrase. It talks about the continuation of playing. It talks about the continuation of one action. Okay. Now we have got exercise number C. In exercise number C, we have complete these sentences using the present participle form of the verb in the box. So this question is telling us that all the words which are present over here, they are verbs. Okay. And present participle means we have to use ing in the last and make a new word. Like look, it will be converted as looking. Howl will be converted as howling. Speak will be speaking. Shivering, cheering, building.
These are the 6 words, and ing will be added to these 6 words and new 6 words will be formed. Those ing verbs will be called present participles. Okay. Now going to the first sentence, dash loudly, the crowd rushed towards or rushed forward to greet the players. जोर जोर से, डैश जोर जोर से मजमे ने मजमे ने भागना शुरू किया खिलाड़ियों की तरफ ताकि उनको मुबारकबाद दें. तब यहाँ पर क्या होगा? स्पीकिंग लाउडली नहीं, शिवरिंग कपकपाना लाउडली नहीं, लुकिंग लाउडली नहीं, हाउलिंग जानवरों की तरह भिर्राना नहीं, बिल्डिंग लाउडली नहीं, चीयरिंग लाउडली यानी खुशी का इजहार जोर जोर से करते हुए मजमा जो है वो प्लेयर्स की तरफ भागा ताकि जो है वो उनको ग्रीट कर सके. डैश इन whispers they moved silently to the other side of the room. अच्छा, वो खामोशी से रूम के दूसरी तरफ चले गए. डैश इन विस्पर्स, विस्पर कहते हैं काना फूसी करने को, मतलब स्लो स्लो बात करने को. अब जैसे बात का वर्ड और विस्पर का वर्ड आ रहा है ना, तो इसमें लुक, हाउल, शीवर, शेयर, बिल्ड नहीं होगा, स्पीक ही होगा. स्पीकिंग इन विस्पर्स मीन बातें करना बिल्कुल स्लो आवाज में ताकि कोई दूसरा सुन ही ना सके. ओके. पॉइंट नंबर 3, दे हर्ड अ वुल्फ. वुल्फ का जैसे वर्ड आया डैश इन द डिस्टेंस, उन्होंने भेड़िए की डैश को सुना बहुत फासले के ऊपर. वुल्फ का अल्फाज जो ना हाउल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वुल्फ जो ना हाउलिंग करता है. तो हाउलिंग वुड बी द आंसर टू दिस पॉइंट नंबर 3. When we go to point number 4, it says that the children had a nice time dash castles in the sand. अब कैसल कहते हैं महल को, और महल जो है वो देखा भी जाता है, महल जो है वो बनाया भी जाता है. और बच्चे जो है ना, उनके एतबार से ये है कि बच्चे उन्होंने एक बेहतरीन वक्त को गुजारा मिट्टी के महल को डैश करते हुए. अब लुकिंग द कैसल इन द सैंड ये भी ठीक हो सकता है, और बिल्डिंग द कैसल इन द सैंड ये तो और अच्छा हो सकता है. नहीं, मिट्टी के उन्होंने महल बनाकर अपने वक्त को अच्छा इस्तेमाल किया. लुकिंग कैसल इन द सैंड, मिट्टी के अंदर महलों को देख कर भी उन्होंने जो ना अच्छा टाइम को गुजारा. दोनों वर्ड्स बिल्कुल सही है. ग्रेड 8 वन स्टूडेंट. पॉइंट नंबर 5, डैश अप एट द स्काई ही स्पॉटेड द बर्ड. स्पॉटेड द बर्ड्स, बर्ड को देखा उसने. तो यहाँ पर आप स्काई का अल्फाज भी देख रहे हैं, बर्ड का अल्फाज भी देख रहे हैं, स्पॉट मतलब निशानदही करने का अल्फाज भी देख रहे हैं. तो ये छोटे छोटे आपको ट्रांसलेशन बता रही है कि यहाँ पर वर्ड जो आएगा वो लुकिंग आएगा. लुकिंग अप. ओके. हाउलिंग अप नहीं हो सकता, स्पीकिंग अप भी नहीं हो सकता. बॉक्स के अंदर अगर हम देखें, शिवरिंग अप भी नहीं हो सकता, चेयरिंग अप भी नहीं हो सकता, बिल्डिंग अप भी नहीं हो सकता. द वर्ड इज लुकिंग. सो लुकिंग अप एट द स्काई ही स्पॉटेड द बर्ड. आसमान की तरफ देखते हुए उसने बर्ड बर्ड की तरफ इशारा किया, स्पॉट कर लिया वो रहा बर्ड. ठीक है. अब डैश इन द कोल्ड द लिटिल गर्ल सैट डाउन ऑन द पेवमेंट. पेवमेंट कहते हैं फुटपाथ को, यानी द लिटिल गर्ल सैट डाउन ऑन द पेवमेंट, छोटी सी गुड़िया जो है वो फुटपाथ पर बैठ गई. डैश इन द कोल्ड, सर्दी की वजह से. क्या? बिल्डिंग इन द कोल्ड नहीं, चेयरिंग इन द कोल्ड नहीं. द वर्ड इज शिवरिंग, कप कपाती हुई सर्दी से, यानी शिवरिंग थरथराना, कप कपाना. तो कप कपाती हुई बच्चे ने जो है वो पेवमेंट के ऊपर बैठ गई वो सर्दी की वजह से. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड exercise number 3 of unit number 2. I request you to please respond me so that on we can go to exercise number D. Ayan and Hasnain. There's a chat room. You can go there and okay, boys. So we have finished
exercise number C, and I have given you the time for understanding and writing the answers of point number 1 till point number 6. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अभी सर ने आपसे कहा था पहली क्लास में कि जेरेंट्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनकी एंडिंग आईएनजी पे होती है, ठीक है। और इसी तरह से सर ने आज की क्लास में बताया कि पार्टिसिपल्स भी ऐसी चीजें होती है कि जिनकी एंडिंग जो है वो आईएनजी पे होती है। तो अब यहाँ पर आप सर हमें ये कह रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं, इसकी एंडिंग भी आईएनजी से हो रही है और जेरेंट से इसकी एंडिंग भी आईएनजी पे हो रही है। तो आप सर हमें बताएं कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेरेंट्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। क्योंकि दोनों के अंदर तो आईएनजी लास्ट में आता है। अब सर एक जगह पे लिखा हुआ है प्लेइंग, ठीक है। प्लेइंग का जो लास्ट आपके पास लेटर है, लास्ट 3 के लेटर्स है, वो आईएनजी है, ओके। अब प्लेइंग को देखकर मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो है ना वो नाउन, मतलब क्या कहते हैं, जेरेंट है, या ये जो है ना वो आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जेरेंट्स डू द वर्क ऑफ अ नाउन। गौर से सुनिएगा कि जेरेंट जब भी आएगा, जेरेंट जब भी आएगा तो वो एज अ नाउन इस्तेमाल होगा, मतलब वो नाम होगा। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि खेलना अच्छी बात है, तो यहाँ पर प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। प्लेइंग जो वर्ड आ रहा है ना, ये प्लेइंग कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि ये सिर्फ एक नाम है कि खेलना अच्छी आदत है, ओके। और इसी तरह से अगर वो पार्टिसिपल्स की बात करेंगे कि हमारे पास प्लेइंग ग्राउंड्स हैं, तो अब यहाँ पर भी वर्ड प्ले ग्राउंड आ रहा है। तो एक में अगर मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग, नई स्क्रीन शेयरिंग पे लेके जाऊं, द फर्स्ट सेंटेंस इज, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? प्लेइंग गेम, नंबर 1 इज प्लेइंग games are good for health, ठीक है। प्लेइंग गेम्स आर गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, सॉरी, PLAY होगा। प्लेइंग गेम्स आर गुड फॉर हेल्थ, ओके। और सेकंड सेंटेंस बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, वी हैव गुड प्लेइंग ग्राउंड्स, ओके। वी हैव गुड प्लेइंग ग्राउंड्स here, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ दोनों आपके पास सेंटेंसेस मौजूद है, और इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर यहाँ अगर मैं आपको टिक लगाऊं तो ये प्लेइंग वाला यहाँ पर भी मौजूद है वर्ड, और प्लेइंग वाला वर्ड यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा, जो बच्चे अश्विल अभी अभी आए हैं वो जरा तवज्जो से सुनिएगा। अब पहले वाले सेंटेंस के अंदर क्या है कि वर्ड तो प्लेइंग ही है, ठीक है। दूसरे वाले में भी वर्ड प्लेइंग ही है, दिस इज ऑल्सो प्लेइंग एंड दैट इज ऑल्सो प्लेइंग, प्लेइंग प्लेइंग, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेइंग, पहले वाला जो प्लेइंग है, जो पहले वाला आपके पास प्लेइंग है, उस प्लेइंग को जब हम देखते हैं तो ये प्लेइंग जो है वो आपको बता रहा है कुछ और कहानी। वो क्या कह रहा है कि भाई ये जो प्लेइंग प्लेइंग है वो है नाउन, ठीक है। और जो दूसरे वाला आपके पास प्लेइंग है, दूसरे वाला प्लेइंग आपको कुछ और बता रहा है। वो बता रहा है कि ये प्लेइंग है आपके पास एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या कि अगर आपके पास आईएनजी वाली आपके पास कोई फिगर सामने आती है, आईएनजी वाला कोई वर्ड सामने आता है, तो फिर आपको ये देखना है कि वो नाउन है या एडजेक्टिव है। इफ दैट इज नाउन, अगर तो वो नाउन है, तो आप अपने दिमाग में रखिए कि दैट नाउन इज रिप्रेजेंटेड एट जेरेंट।
लेकिन अगर तो वो नाउन नहीं है, अगर वो एडजेक्टिव है, सो एडजेक्टिव इट विल बी टेलिंग अस दैट इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो आपके पास क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि आपने वर्ड को देखना है और वर्ड को देखने के बाद आपको ये फैसला करना है कि आईएनजी तो है, ठीक है, बहुत आईएनजी होने के बाद क्या है, आपको ये देखना है कि बेटा वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब अगर तो वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो उसे हम कहेंगे जेरेंट, और अगर वो नाउन नहीं है, अगर वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो अब इसका नाम जेरेंट नहीं होगा, इसका नाम चेंज होकर प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको नाम हम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपके पास है, देखें बहुत आसान सी बात बताते हैं सर, एक और आपको एग्जाम्पल। ये सर ने जो है ड्राइंग को क्लियर किया, सर इज मेकिंग वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। कुकिंग फूड, नो, cooking is very interesting thing. This is the point number one. And point number two, it says कि she, okay, sorry. Point number two, it says she has a good, she has a good, she has a cooking stove. Good cooking stove कहते हैं, cooking stove. देखिए पहले वाला जो सेंटेंस है, पहले वाले सेंटेंस का मतलब ये है कि कुकिंग जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, जबकि सेकंड सेंटेंस आपके पास है कि उसके पास जो है ना कुकिंग स्टोव है, चूल्हा जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कुकिंग, ठीक है, दूसरी तरफ भी लिखा हुआ है कुकिंग, और आपको जो है अब तय करना है कि ये जो है वो जेरेंट है या एडजेक्टिव, मतलब जेरेंट है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हम अगर इसकी बात करते हैं पहले वाले की, कुकिंग की, तो जो पहले वाला कुकिंग है वो आपको बता रहा है, पहले वाला कुकिंग क्या बता रहा है कि नाउन है, दिस इज नाउन, कि कुकिंग अच्छी चीज होती है, नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कुकिंग स्टोव, चूल्हे को हम कहते हैं कुक स्टोव कहते हैं, लेकिन कुकिंग स्टोव भी ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये जो है ना एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। एक मिनट बेटा, आई थिंक समबडी इज ज्वाइनिंग, ओके, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ADJECTIV एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर जो है ना, अच्छा, कुकिंग स्टोव भी कह सकते हैं और कुकिंग पॉट्स भी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, ओके, कुकिंग स्टोव, कुकिंग टूल्स, ये भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज, कुकिंग एक दफा एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ, एक दफा नाउन के तौर पर। जैसे ही आपके दिमाग ने कहा कि सर ये तो नाउन है, सो यू वुड से कि आप सर जी आर जेरेंट है सर ये, ओके, ये जेरेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे ही आपने देखा कि एडजेक्टिव है, सो एडजेक्टिव इट सेज कि ये क्या है बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि आईएनजी वाले वर्ड को हम देखकर फैसला करेंगे कि ये नाम है या खासियत है। नाम मीन्स नाउन है या फिर कोई एडजेक्टिव है। इफ दैट इज नाउन, आप कहेंगे एडजेक्टिव है। इफ दैट इज एडजेक्टिव, सॉरी, नाउन है तो आप कहेंगे जेरेंट, एंड इफ दैट इज एडजेक्टिव तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मौजूद है। मजीद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट शेयर की तरफ बेटा। इसी चीज को इस बॉक्स के अंदर आपको बताया गया है।
मेरा ख्याल है अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज नंबर डी जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज नंबर डी जो है ना बहुत आसान है। आपको ये देखना है कि जो आईएनजी वाले वर्ड्स हैं वो एज अ नाउन इस्तेमाल हुए हैं या एज अ वर्ब, दैट इज एज अ नाउन इस्तेमाल हुए हैं, या फिर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं। अगर तो वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं तो आपको पता है क्या करना है, एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट क्लास। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।